तो गाइज हम आ गए हैं मालचा महल, दी सो कॉल्ड हॉन्टेड प्लेस ऑफ दिल्ली। हमें देखना है कि आखिर इतना क्या हॉन्टेड है जो लोगों ने इतना हाइप बना रखा है। लाइक यार दिल्ली टूरिज्म ने हॉन्टेड भी कहते हैं और हंटिंग भी कहते हैं, तो अब ये हॉन्टेड है या हंटिंग है ये आज हम पता लगाने आए हैं यहाँ पे। भाई साहब दिल्ली टूरिज्म ने अलग से हॉन्टेड वॉक निकाल रखा है, जहाँ पे आपको आना पड़ेगा और आप एक गाइड के साथ इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ हमें बैच मिला है, हैट मिली है, बैग मिला है जो हमें अंदर भूतों से बचाएगी जी। लेट्स सी कितने भूत अंदर है और बेगम विलायत महल दिखती हैं या नहीं। चलिए निखिल बढ़ चुका है आगे विलायत महल को देखने के लिए। उन्होंने यहाँ सुसाइड किया था काफी साल पहले। काफी रिच थी वो गाइस, बता दें आपको, ऐसा हमारे गाइड ने हमें बताया है। और आप यहाँ पत्थर भी देख सकते हैं कैसे एकदम टेढ़े मेढ़े से हो रखे हैं, यहाँ चलना बहुत मुश्किल है। Yeah, so now a little bit about बेगम विलायत महल। बेगम विलायत महल जो थी वो लखनऊ की थी रहने वाली, और ये मैं बात कर रहा हूँ पार्टीशन टाइम की। I'm taking you back to around 46-47, 1946-1947. So Begum Vilayat Mahal was married to a gentleman who was a civil servant with the surname Mr. Butt, B-U-T-T, and they married and partition होने लगा था, so that riots were happening, Hindu-Muslim thing was going on, and धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि the husband wanted to shift to Pakistan, but Vilayat Mahal had her heart firmly planted in Lucknow. She hated going elsewhere because she thought हमारी ज़मीन जायदाद रिश्तेदार सब कुछ हमारी roots यहाँ पर है, so why should we be going? But anyway, the husband forced her to leave, and that trauma stayed with her. So somewhere that trauma affected her brain a lot, and anyway they ended up in Lahore, and they had lots of personal problems. The husband died after a few years, and the Begum ended up in a mental asylum, and Pagal Khane ki naubat aa gayi, and because she had those fits and mental issues that somewhere she felt mera kuch wahan reh gaya, and she was forced to go there. So in that situation she was in the mental asylum in Lahore for quite a number of years, and from there she was sending regular mails and chithiyan to Indian government. So she was corresponding with Mr. Nehru and also with the chief minister of Kashmir, because her husband was from Kashmir, and urging them, requesting them for a sort of going back to the motherland. And finally in somewhere in the 60s, Mr. Nehru and the CM of Kashmir at that time, Mr. Farooq Abdullah's father, Sheikh Abdullah, they settled her in Srinagar with the children. And after a few years, for some unforeseen things and something mysterious, her home or her wooden palace was burnt, and she had nowhere to go. So imagine the mental state of a person who was already feeling displaced, forced out of her mother land, then coming back, again losing home. तो उस confused state of mind में she landed up one fine day in the 1970s, especially early 70s, 71, 72. एक दिन अचानक वो अपनी पूरी फैमिली के साथ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके रहने लगी। Vilayat Mahal also had 2 other children. There's a twist in the tale. So the 2 who stayed here were Princess Sakina and Prince Ali Zafar, and the other 2, one of them ran away when they came to India from Pakistan. So he's become like he's in the final days of his life. Looks like a disoriented madman now. Yeah?
These pictures were taken from? So a lot of foreign journalists used to come and take their interviews ना. So कुछ हेल्प नहीं किया किसी ने उनका? नहीं, उन्हीं इंटरव्यूज के दौरान यहाँ कई पिक्चर्स ली गई हैं that they used to have क्रॉकरी, कटलरी. उनको आप देखोगे आर्टिकल्स तो आप देखोगे. And when the prince died here in 2017, so the news spread around कि लोग यहाँ जो आसपास के जो चोर उचक्के उन्होंने आगे काफी चीजें तो गायब भी कर ली, जिससे पहले पुलिस आके जब्त करती, सारी जगह को सील करती. There was a gap, there was a window of time in which lot of things were looted. It's very sad that we lost many things which belong to that era. A lot of books, lot of written material, lot of proofs. God knows where they are. Yeah, a little bit of the structure here. This is the typical Tughlaq era structure from 14th century. आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे irregular stones हैं. They are held together by this mixture. The location has been chosen एक हल्की सी पहाड़ी पे बनाया गया है. क्यों आप सोच सकते हो क्यों? Because hunting lodge था. तो यहाँ से आप you can मचान जो होता है वो भी हम ऊपर चढ़ के शूट करते हैं जो भी करते हैं. तो उस समय तो खैर राइफल्स नहीं थी. We are talking about 14th century, but still this can provide a long sight view of this entire forest and you can do hunting very easily. तो सर जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉगर्स आते हैं तो वो बताते हैं कि हॉन्टेड प्लेस है, तो आपके हिसाब से क्या है सर? मैं इसको हॉन्टेड नहीं मानता, मैं इसको मिस्टीरियस मानता हूँ. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से ये एक क्वेश्चन मार्क है. तो एक क्वेश्चन मार्क और भूतिया जगह होने में बहुत फर्क है. तो इसका रिजल्ट क्या है? ये आपके लिए क्या है? ये हॉन्टेड प्लेस है, हंटिंग प्लेस है, क्या है ये? मेरे लिए एक मिस्टीरियस हंटिंग प्लेस है. सो आज हमारे साथ अतुल जी भी है यहाँ पे इस वॉक में, जो टूरिस्ट एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से है. सो हमें ये बता दीजिए कि हेरिटेज वॉक हमने सुना था काफ़ी टाइम पहले शुरू हुआ दिल्ली टूरिज्म की तरफ से, बट नाउ हम देख रहे हैं कि कैसे हेरिटेज वॉक से हॉन्टेड वॉक, ये सोच कहाँ से आई? ये सोच वहीं से आई कि हमने मार्च में ही 6 हेरिटेज वॉक्स स्टार्ट की, जिसमें है देखो अपना सीपी, दिल्ली का दिल देखो, शाहजहानाबाद और फूड वॉक, अदर थिंग्स. बट आफ्टर दैट हम ये भी एक्सप्लोर कर रहे थे जो हिडन जेम्स हैं दिल्ली के, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, उनको भी प्रमोट किया जाए और लोगों को दिखाया जाए. क्योंकि दिल्ली तो हर तरह के टूरिस्ट आते हैं, घरेलू पर्यटक प्लस विदेशी पर्यटक आते हैं. तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम इस प्लेस तक पहुँचे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है. और ये देखने में ही एक हंटिंग लॉज था. सो ये स्टोरी आई कि हंटिंग आर द हॉन्टेड लॉज, क्योंकि यहाँ जो विलायत महल रहती थी उन्होंने खुद सुसाइड किया, उनके बच्चे रहते थे यहाँ विदाउट एनी बेसिक एमिनिटीज़. सो ये एक मिस्टीरियस थिंग था. तो गाइस फाइनली हम मालचा महल के बाहर आ चुके हैं और आप देख चुके हैं दिन ढलता जा रहा है और रात होती जा रही है और डर का माहौल बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे कहते हैं कि ज़्यादा देर तक रात को नहीं रुकना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बैट्स यहाँ पे आते हैं और जैकल्स भी होते हैं. जैकल्स की रोने की आवाज़ भी आती है. और हमने सुना भी, इनफैक्ट ऊपर जब हम टॉप व्यू पे गए थे तो जैकल्स की आवाज़ आ रही थी और इतनी भयंकर, लाइक पक्का कोई ना कोई बंदा तो डर ही जाए यहाँ पे आके. अब चलिए चलते हैं, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं. साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय.